everyone. Students, today we are going to start chapter 6 of your book, alright? And the chapter's name is On the Face of It. It is written by Susan Hill, alright? So, first of all, let's get to introduced with the author. Now you can see here Susan Hill. She is an English author of fiction and non-fiction. Her novels include The Woman in Black, The Mist in the Mirror, and I'm the King of the Castle, for which she received the Somerset Maugham Award in 1971. So now you can understand that you are going to read a play written by someone who's very famous in her field of writing, and she has written really best-selling works. All right, so here it's given before you read. So you can see here this is a play featuring an old man. So now understand the first character, an old man, then a small boy. All right, कैरेक्टर नंबर 1, कैरेक्टर नंबर 2, मीटिंग इन द फॉर्मर्स गार्डन. तो यहाँ पे फॉर्मर क्या हुआ? द ओल्ड मैन. ऑलराइट, द ओल्ड मैन स्ट्राइक्स अप अ फ्रेंडशिप विद द बॉय who is very withdrawn and defiant. What is the bond that unites the two? So here the boy, for the boy it's written that he was very withdrawn and defiant. So the boy is very stubborn and he doesn't like to be among people, to meet people. But why so? That's a big question mark. A boy, a child who loves to play, who loves to be surrounded with people, why he is so withdrawn? So we have to find it out while reading the play. And what is the bond that unites the two? It means there must be something in common between the old man and the boy. So what is that common factor? We have to find out that also. Alright? So now you are about to understand that this is a story of an old man and a small boy. Obviously, very striking factor of their age is there, right? And further, there is something that you need to know about that is common in among both of these. All right. So here comes the scene 1. Please understand this is a play, and obviously plays are performed in different scenes. All right. So here the first scene is Mr. Lamb's garden. So now understand Mr. Lamb is the old man. Okay. And the scene is of a garden. There is the occasional sound of bird song and of tree leaves rustling. Now you can understand a garden hai. Whenever you enter a garden, what you can hear there? Sound of bird chirping, tree leaves. Alright. So all these sounds were there and they were coming occasionally. Derry's footstep, Derry, the another character, and now try to understand that he is the small boy, Derry. Derry's footsteps are heard as he walks slow and tentatively through the long grass. Tentative here means very hesitatingly or without confidence, very slowly. All right, so that he doesn't want to get noticed. All right, he pauses, then walks on again. He comes round a screen of bushes so that when Mr. Lamb speaks to him, he is close at hand, and Derry is startled. What happened? That एक छोटा सा बच्चा है, छोटा, बहुत छोटा भी नहीं है, आप ही लोगों की एज का बच्चा है, उसका नाम क्या है? डेरी. ठीक है, वो जो है बहुत धीरे धीरे चलते हुए लंबी लंबी घास के ऊपर से चलते हुए वो आता है, पॉज करता है और फिर धीरे से चल के आता है. इट मीन्स ही इज़ ट्राइंग टू हाइड और ही डजंट वांट टू गेट नोटिस्ड while entering to the garden, right? And then
From behind the bushes he just comes forward, and there was Mr. Lamb. Mr. Lamb just spoke something when he was very close, when Derry was very close to him, but Derry was not able to see Mr. Lamb, लेकिन मिस्टर लैम डेरी को देख सकते थे. Why Derry got startled? डेरी जो था वो अचानक से शॉक क्यों हो गया, क्या हुआ ऐसा? So let's find out. Mr. Lamb said, now here are two characters, one is Mr. Lamb and one is Derry. So Mr. Lamb said, mind the apples, means ध्यान से, apples हैं वहाँ पे, apples को देख के आना. Derry, now he was surprised. What? Who's that? Who's there? It means Derry was not expecting anybody in the garden. Finding it empty, he tried to enter in it. Then Mr. Lamb said, Lamb's my name. You got to understand here. Lamb's my name. Mind the apples. Crab apples those are. Crab apples means a small sour apple. Alright? Wind falls in the long grass, you could trip. It means that they have fallen due to the strong wind, and you could trip, you could tumble down. तुम गिर सकते हो, फिसल सकते हो. Derry said, I thought this was an empty place. I didn't know there was anybody here. So what Derry said that I was not aware that somebody would be here. I thought it's empty, that's why I came. And he further said, Mr. Lamb said further, that's all right, I'm here. What are you afraid of, boy? That's all right. तो मिस्टर लैम जो है डेरी की शॉकिंग जो सर्कमस्टेंस थी, स्टेट ऑफ माइंड था, जस्ट टू पेसिफाई दैट ही सेज दैट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं, मैं हूँ यहाँ पे, एंड तुम किस बात से डर रहे हो बच्चे, दैट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं, सब ठीक है. डेरी सेड, आई थॉट इट वॉज एम्प्टी, एन एम्प्टी हाउस. मिस्टर लैम सेड, सो इट इज़, खाली है घर. सिंस आई एम आउट हियर इन द गार्डन, क्योंकि मैं तो गार्डन में हूँ. इट इज़ एम्प्टी, घर तो एम्प्टी है. अनटिल आई गो बैक इन साइड, जब तक मैं अंदर नहीं जाता तब तक तो ये खाली है. In the meantime, I'm out here and likely to stop. A day like this, beautiful day, not a day to be indoors. और फिर वो कहते हैं मौसम की खूबसूरती के बारे में, दिन की खूबसूरती के बारे में कि और अभी तो मैं बाहर हूँ और यहीं रुकने वाला हूँ, क्योंकि इतना अच्छा दिन है आज, मतलब इतने अच्छे दिन में अंदर तो नहीं रहना चाहिए. डेरी पैनिक करते हुए कहता है, आई हैव गॉट टू गो, मुझे जाना है. मिस्टर लैम कहते हैं, नॉट ऑन माई अकाउंट, मतलब मेरी वजह से मत जाओ. आई डोंट माइंड हु कम्स इन टू द गार्डन, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन गार्डन में आता है. द गेट इज़ ऑलवेज ओपन, गेट इज़ ऑलवेज ओपन, इट मीन्स पीपल आर वेलकम इन साइड. ओनली यू क्लाइम द गार्डन वॉल. हाँ, अब तुम गार्डन वॉल जो है क्लाइम करके आए हो वो बात अलग है, लेकिन गेट हमेशा ओपन रहता है. डेरी गुस्से में कहता है, यू आर वॉचिंग मी. मिस्टर लैम कहते हैं, आई सॉ यू but the gates open. All welcome, you are welcome. I sit here, I like sitting. तो मिस्टर लैम कहते हैं कि मैं तुम्हें वॉच नहीं कर रहा था, मैं तुम पे नज़र नहीं रख रहा था, मैंने तुम्हें देखा, लेकिन गेट ओपन है, सभी का वेलकम है, तुम्हारा भी वेलकम है, और मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे अच्छा लगता है यहाँ बैठना. डेरी सेड, आई वुड नॉट कम टू स्टील एनीथिंग. सो डेरी कहते हैं कि मैं कुछ चोरी करने नहीं आया था. मिस्टर लैम कहते हैं, नो नो, द यंग लैड्स स्टील, स्क्रम्प द एप्पल्स. तो वो कहते हैं कि हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा नहीं सोच रहा था. जो छोटे बच्चे होते हैं, द यंग वंस, राइट, वो आज चोरी करते हैं. दे स्क्रम्प मीन्स द एक्ट ऑफ स्टीलिंग. ऑल राइट, तो दे कम टू स्टील, यू आर नॉट सो यंग, और तुम इतने छोटे नहीं हो कि मतलब तुम स्टील करो. आई नो दैट. डेरी सेड, आई जस्ट wanted to come into the garden. तो डेरी सेड कि मैं सिर्फ आना चाहता था इस गार्डन में. मिस्टर लैम सेड, सो यू डिड, हियर वी आर देन. मिस्टर लैम कहते हैं, तो तुम आ गए अंदर और यहाँ हम हैं. डेरी सेड, यू डोंट नो हु आई एम. डेरी कहता है, तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ. मिस्टर लैम कहते हैं, अ बॉय 13 और सो, एक लड़के हो 13 साल या ऐसे ही.
Derry said 14. But I have got to go now. Goodbye. डेरी बहुत ही स्टबर्न तरीके से कहता है 14 अपने एज को बताते हुए, और फिर कहता है लेकिन मुझे जाना है, गुड बाय। मिस्टर लैम कहते हैं नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, जस्ट अ गार्डन, जस्ट मी। मिस्टर लैम कहते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है, सिर्फ एक गार्डन है, मैं हूँ सिर्फ। डेरी सेड बट आई एम नॉट अफ्रेड, पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी। फिर डेरी कहता है कि मैं नहीं डर रहा, लोग डरते हैं मुझसे। मिस्टर लैम सेड वाई शुड दैट बी, ऐसा क्यों है? डेरी सेड एवरीवन इज, इट डजंट मैटर हु दे आर और व्हाट दे से और हाउ दे लुक, हाउ दे प्रिटेंड, आई नो, आई कैन सी। डेरी कहता है कि हर कोई, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कौन है, क्या कहते हैं, कैसे दिखते हैं और क्या दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे पता है कि लोग मुझसे डरते हैं। एंड लास्टली ही सेड आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ। मिस्टर लैम सेड सी वट यू अंडरस्टैंड। डेरी सेड व्हाट दे थिंक, जो लोग सोचते हैं वो मैं समझ सकता हूँ। मिस्टर लैम सेड व्हाट डू दे थिंक देन, कि अच्छा तो क्या सोचते हैं लोग? डेरी सेड यू थिंक हियर्स अ बॉय, तुम्हें लग रहा होगा अरे ये तो एक लड़का है। यू लुक एट मी एंड देन यू सी माई फेस एंड यू थिंक, सी चिल्ड्रन, हियर then you see my face and you think. Now try to understand why Derry was so stubborn while talking about that people just pretend and they are afraid of me. Here is the connection with the face. लोग देखते हैं मुझे, फिर मेरे चेहरे को, और फिर सोचते हैं that's bad, that's a terrible thing, that's the ugliest thing I ever saw. You think poor boy. अब डेरी कह रहा है कि हाँ तुम भी सोचते होगे कि एक बच्चा आया है, फिर तुम मेरी तरफ देखोगे और तुमने देखा मेरे चेहरे की तरफ और तुम्हें लगा कि अरे कितना गंदा है, कितना डरावना है, कितना कितना ज़्यादा बुरा दिख रहा है, कितना भद्दा दिख रहा है, मतलब इतनी भद्दी चीज़ तो मैंने शायद ही कभी देखी हो। और तुम्हें लगा होगा ओ माई गॉड यू शुड पिटी मी, मतलब तुम्हें बहुत सिंपैथी हो रही होगी मुझसे। बट आई एम नॉट पुअर, अंडरनीथ यू आर अफ्रेड। बट डैडी कहता है कि लेकिन नहीं, मैं आई एम नॉट अ पुअर बॉय, राइट, और डायरेक्टली बिलो इनसाइड यू मस्ट बी अफ्रेड ऑफ जस्ट शोइंग पिटी, एनीबडी वुड बी, आई एम। फिर डैडी बहुत बड़ी बात कहता है, छोटा सा बच्चा, ही सेज anybody would be, I am, मैं भी, when I look in the mirror I see it, I'm afraid of me, मैं भी जब मैं खुद को शीशे में देखता हूँ मैं भी डरता हूँ खुद को देखकर। So here he was trying to say that some pity on him by saying that he was a pure boy, but actually everyone was afraid seeing his face. Then he added that Mr. Lamb will also pity him, but in his heart inside, he will also be scared of Derry, just because of his face. So what happened to his face? Let's find it out. So the further line says, the further dialogue of Mr. Lamb. When Derry told about himself, that everybody is afraid of looking at him and they feel so ugly, so bad, the ugliest thing they would have seen in the world. So over all these things Mr. Lamb said, no, not the whole of you, not of you. तो मिस्टर लैम कहते हैं नहीं, there is nothing to be afraid of, तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं, not of you. It's all right अगर थोड़ा सा कुछ है प्रॉब्लम, it's all right if something is ugly, but not the whole of you. You are not that bad. Derry said yes. Derry यहाँ पे stubborn होता है and he just tries to contradict each and every statement because he wants to get into the heart of people कि वो झूठ बोलते हैं उसके मुंह पे और सबके सब उसके चेहरे को देख के डरते हैं. And then there was a pause. Mr. Lamb said, later on, when it's a bit cooler, I'll get the ladder and a stick and pull down those crab apples. Now see, here Derry was talking about his face, but Mr. Lamb is talking about
picking or pulling down the crab apples, right? Here. That वो बातों को चेंज करते हैं. He just changed the topic and he says that अभी जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, थोड़ी सी शाम हो जाएगी, तो मैं एक सीढ़ी ले आऊँगा और एक स्टिक ले आऊँगा और हम क्या करेंगे, और मैं क्रैब एप्पल्स को, इन एप्पल्स को मैं तोड़ूँगा. I'll pull down. They are ripe for it, और वो पक चुके हैं. I make jelly, मैं उनसे जेली बनाऊँगा. It's a good time of year, September. Please remember the time of the year, you can underline it. Look at them, orange and golden. That's magic fruit, I often say. But it's best picked and made into jelly. You could give me a hand. So just changing the topic, Mr. Lamb says कि वो अब उस पेड़ की, उन क्रैब एप्पल्स की खूबसूरती, उनके बारे में बात करने लगते हैं. So that Derry could calm down there and he could sway his mind away from his ugly look to the beauty around him. और फिर वो कहते हैं कि बेटर, मैं इनको मैजिक फ्रूट कहता हूँ अक्सर, लेकिन इनको ये बहुत ही अच्छा टाइम है टू पिक देम एंड टू कन्वर्ट देम इनटू जेली, टू मेक जेली आउट ऑफ देम. एंड ही ऑल्सो आस्क अ फेवर फ्रॉम डेरी कि तुम मेरा साथ दे सकते हो, तुम भी मुझे हेल्प कर सकते हो. यू कुड गिव मी अ हैंड. डेरी सेड, व्हाट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर? डेरी कहता है कि आपने सब्जेक्ट क्यों चेंज कर दिया? व्हाट वॉज द सब्जेक्ट? इट वॉज अबाउट द फेस, द अगली फेस ऑफ डेरी. डेरीज फेस. पीपल ऑलवेज डू दैट. लोग अक्सर ऐसा करते हैं. वाई डोंट यू आस्क मी? तुम मुझसे पूछते क्यों नहीं? वाई डू यू डू वट दे ऑल डू एंड प्रिटेंड इट इज़ंट ट्रू एंड इज़ंट देयर? In case I see you are looking and mind and get upset, I'll tell you, you don't ask me because you're afraid to. So what he says that कि मुझसे पूछते क्यों नहीं तुम कि ये कैसे हुआ? Why do you do what they all do and pretend? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो जैसा कि वो सभी लोग करते हैं, कि ये मतलब जैसे कि ये सच ही ना हो और ऐसा कुछ हो ही ना यहाँ पे. और इन केस जैसे कि तुम मुझे देख रहे हो और अपसेट हो रहे होगे, है ना, अपसेट हुए होगे देख के मुझे, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम मुझसे पूछ नहीं रहे हो. क्यों? क्योंकि तुम अफ्रेड हो, बिकॉज यू आर अफ्रेड ऑफ मी. सो हियर ही वॉज सो एडमेंट telling Mr. Lamb that people are afraid, and that's why he was entering the house without getting noticed. He first saw that nobody was there, and further he tried to see that nobody could see him if that place is empty, and that's why he didn't enter from the gate. He climbed the wall, right? So Mr. Lamb said, you want me to ask? Say so then. Mr. Lamb कहते हैं कि अच्छा तुम चाहते हो कि मैं पूछूं? ठीक है, तो बताओ. Derry says, I don't like being with people, any people. मुझे लोगों के साथ रहना नहीं पसंद है, किसी के साथ भी रहना नहीं पसंद है. Mr. Lamb says, I should say, to look at it, I should say, you got burned in a fire. फिर Mr. Lamb कहते हैं कि well, तुम्हारे चेहरे को देख के, इससे देख के मैं ये कह सकता हूँ तुम्हारा चेहरा आग से जल गया है. Derry says, not in fire. नहीं, आग से नहीं जला है. I got acid all down that side of my face. कैसे जला है डेरी का फेस बच्चों? एसिड से. That side means the one side you can see in the picture itself here, right? That side of the face. And it burned all away. It ate up my face. It ate me up. यहाँ पे दो बातें लिखी हैं. उस एसिड ने मेरा चेहरा खा लिया, उसने मुझे खा लिया. What's the difference here? उसने चेहरा खा लिया means the face is spoiled. It has eaten me up. इसका क्या मतलब है? It means now he is all full of negativity.
full of negativity, right? He was just scared of being with people, क्योंकि लोग डर जाते होंगे देख के और उसे कमेंट करते होंगे. So he was all under the suppression. That's why he don't like what he said. I don't like being with people, any people. अब आप समझ गए कनेक्शन दोनों का. And now it's like this and it won't ever be any different. और अब ये ऐसा ही है और कभी भी अब नहीं बदलेगा. Alright children, so till here we have completed where Derry revealed that how he got that burnt mark on his face, right? So we have already got to know that he got burnt and it was due to acid. Alright, now let's move to the next page where Mr. Lamb said no. So he just shown a disinterest in the topic and he don't want to hear it about it anymore. So Derry said that, aren't you interested? आपको interest नहीं आ रहा मेरी बात में? Mr. Lamb said, you are a boy who came into the garden. Plenty do, बहुत सारे लोग आते हैं. I'm interested in anybody, anything. मुझे हर किसी में इंटरेस्ट है, हर चीज़ में इंटरेस्ट है. देयर इज़ नथिंग गॉड मेड दैट डजंट इंटरेस्ट मी. और ऐसा कुछ भी नहीं है जो भगवान ने बनाया है जिसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है. लुक ओवर देयर, ओवर बिसाइड द फार वॉल, व्हाट कैन यू सी? सो ही पॉइंटेड टूवर्ड्स द वॉल एंड बिसाइड इट and asked, just to sway the topic, he asked Derry to look at the beauty around. So Derry said, rubbish. Mr. Lamb said, rubbish? Look boy, look, what do you see? And then again he pointed towards those things and he asked Derry, that see, now tell me, what do you see? Derry said, just grass and stuff, weeds. So grass and stuff, obviously that's a garden, so there will be grass and flowers, plants, right? And he said weeds. Weeds refer to unwanted plants, right, that grow along the grass or with other flowery plants. So Mr. Lamb said on that, some call them weeds. कुछ लोग उन्हें weeds कहते हैं, मतलब unwanted plants. If you like, ठीक है, अगर तुम ऐसा ही कहना चाहते हो तो ठीक है. देन अ वीड गार्डन, तो फिर तुम ये भी कह सकते हो दैट दिस इज़ अ वीड गार्डन, मतलब अनवांटेड प्लांट्स का गार्डन है ये. दैट देयर इज़ फ्रूट एंड देयर आर फ्लावर्स एंड ट्रीज एंड हर्ब्स, ऑल सॉर्ट्स. नाउ ही इज़ ट्राइंग टू काउंसिल Derry that he should look upon the beauty around him instead of only looking at the burnt mark. Alright, so here he further says that there are several of the things. There's fruit, flowers, trees and herbs, all sorts, but over there weeds. लेकिन वहाँ पे क्या है? Weeds हैं, unwanted plants हैं. I grow weeds there. See, what's the intention here? Why is one green growing plant called a weed and another flower? ऐसा क्यों है कि एक जो हरा भरा प्लांट है उसको वीड कहते हैं, अनवांटेड कहते हैं एंड दैट्स ऑफ नो यूज़, और दूसरे को हम फ्लावर कह देते हैं? वेयर इज़ द डिफरेंस? इट्स ऑल लाइफ. कहाँ डिफरेंस क्या है इनमें? सब में ज़िंदगी है. दे ऑल आर ग्रोइंग सेम एज़ यू एंड मी. बिल्कुल तुम्हारी और मेरी तरह सब ग्रो कर रहे हैं. दे ऑल हैव लाइफ. Derry said, we are not the same. अब Derry को वो बताना चाहते हैं सेम एज़ यू एंड मी. वो चाहते हैं कि उन दोनों के बीच में क्या हो, मिस्टर लैम्ब एंड Derry के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश हो. बट Derry इज़ सो स्टबर्न, ही सिंपली सेज वी आर नॉट द सेम. हम सेम नहीं हैं. मिस्टर लैम्ब सेड, आई एम ओल्ड, यू आर यंग. अब कंट्रास्ट देखिए, मैं ओल्ड हूँ, तुम यंग हो. यू हैव गॉट अ बर्न्ड फेस, आई हैव गॉट अ टिन लेग. नाउ यू गॉट द सिमिलैरिटी हियर. पता चला आपको? वो कहते हैं तुम्हारा फेस बर्न्ट है, मेरी जो एक पैर है वो टिन का है. नॉट इम्पॉर्टेंट, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. यू आर स्टैंडिंग देयर, आई एम सिटिंग हियर. तुम वहाँ खड़े हो, मैं यहाँ बैठा हूँ. वेयर इज़ द डिफरेंस? कहाँ डिफरेंस है? Derry कहता है, वाई हैव यू गॉट अ टिन लेग? सी नाउ द टॉपिक हैज़ एक्चुअली चेंज्ड एंड Derry इज़ इंटरेस्टेड इन the unprivileged that they both have. Now he can find a similarity that they both are going through a same thing.
they both have deformities. Alright, Mr. Lamb said, real one got blown off means जो सही वाला जो मतलब असली पैर था वो एक एक्सप्लोजन में it just got blast. Alright, it got damaged years back, काफ़ी साल पहले. लेमी लैम्ब, और फिर अब वो उसे बताते हैं सम किड्स से. कुछ बच्चे भी कहते हैं लेमी लैम्ब जब मैं बाहर निकलता हूँ. हैवंट यू हर्ड देम, क्या तुमने कभी सुना नहीं उन्हें? यू विल लेमी लैम्ब, मतलब तुम सुनोगे लेमी लैम्ब कहते हुए. इट फिट्स डजंट ट्रबल मी, मतलब ठीक है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे अब. डेरी कहता है बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर्स एंड कवर इट अप एंड नो वन सीज, लेकिन तुम तो ट्राउज़र से इसे कवर कर सकते हो, इसे कोई नहीं देखेगा. देन दे डोंट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर, उन्हें नोटिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो घूरेंगे भी नहीं. मिस्टर लैम कहते हैं सम डू सम डोंट, मतलब कुछ लोग स्पेशली देखने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग देख के भी अनदेखा करते हैं. दे गेट टायर्ड ऑफ इट, और इन द एंड वो कहते हैं कि एक टाइम के बाद सब टायर्ड हो जाएंगे. दे विल जस्ट स्टॉप नोटिसिंग इट. देयर इज़ प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर एट, मतलब यहाँ पे बहुत सारी दुनिया में खूबसूरत चीज़ें हैं टू लुक एट, राइट. So he further says that the similarity we both have got, but then Derry refused to accept that. He says that you can hide your leg, but my face can't be hidden by any means. So till here we have completed that they don't have to notice and stare. To that Mr. Lamb said that they will get tired of it after some time, and there's a plenty of things to stare at. देखने के लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं. Why they need to look at my this tin leg? Derry said that like my face. Now he's turning the topic to his face. That हाँ, जैसे कि दुनिया में बहुत सारी देखने की चीज़ें हैं, घूरने की चीज़ें, जैसे कि मेरा चेहरा, मतलब देख के इंसान कभी भी अनदेखा कर ही नहीं पाता, नोटिस ही नहीं कर पाता है. मतलब द पर्सन नीड्स टू स्टेयर एट मी, वो देखने के बाद वो पलट पलट के देखते हैं. एंड दे कैन नॉट divert their mind. Mr. Lamb said, like crab apples or the weeds or a spider climbing up silken ladder or my tall sunflowers. फिर वो बोलते हैं he just don't take the words that comes from Derry. He keeps on continuing the positive attitude. वो कहते हैं जैसे कि crab apples और the weeds, spiders जो हैं climb करते हुए, and मेरे tall sunflowers, these are all to stare at. ठीक है, यहाँ पे देखिए, these are the things he says to stare at, right? Spider. Derry says, thanks. Mr. Lamb said, it's all relative, Beauty and the Beast. Beauty and the Beast must be reminding you of a very beautiful story. There's a movie also, based on it. So I'll talk about it further. Derry said, what's that supposed to mean? मतलब मिस्टर लैम जब कहते हैं कि ये सब जुड़े हुए हैं, जैसे कि ब्यूटी एंड द बेस्ट मीन्स खूबसूरती और उसके साथ में अगलेनेस इज़ ऑल कनेक्टेड, दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ लाइफ, राइट. जैसे हम कहते हैं सुख और दुख, दे आर द टू साइड्स ऑफ अ कॉइन. जस्ट लाइक ब्यूटी एंड अगलीनेस, दे आर ऑल्सो फेजेस ऑफ लाइफ, दे आर ऑल्सो पार्ट्स ऑफ लाइफ. मिस्टर लैम सेड, यू टेल मी. व्हेन डेरी आस्क्ड दैट व्हाट दैट सपोज टू मीन, तो मिस्टर लैम उन्हीं को कहते हैं कि तुम ही बताओ, तुम्हें क्या लगता है. Derry says that you need not think they haven't all told me that fairy story before. तो डेरी कहता है हाँ, मतलब तुम्हें ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि मुझे वो फेरी स्टोरी नहीं पता है जो लोग सुनाते हैं. इट्स नॉट वॉट यू लुक लाइक, इट्स वॉट यू आर इनसाइड. मतलब जो तुम दिखते हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे फ़र्क पड़ता है कि तुम अंदर से कैसे हो, राइट. योर हार्ट मैटर्स. हैंडसम इज़ एज हैंडसम एज हैंडसम डज, राइट. मतलब कोई भी इंसान खूबसूरत तब होता है वो अपने कार्यों से खूबसूरत होता है. द पर्सन इज़ हैंडसम ड्यू टू हिज गुड डीड्स. ब्यूटी लव्ड द मॉन्स्ट्रस बीस्ट फॉर हिमसेल्फ एंड व्हेन शी किस्ड हिम ही चेंज्ड इनटू अ हैंडसम प्रिंस. ओनली ही वुड हैव स्टेड अ मॉन्स्ट्रस बीस्ट. आई वोंट चेंज. हियर ही सेज दैट हाँ मुझे पता है कि जो ब्यूटी होती है वो एक मॉन्स्ट्रस बीस्ट को किस करती है एंड देन ही चेंज्ड इनटू अ हैंडसम प्रिंस. और ये वो ऐसा करती है, मीन्स ब्यूटी डज दैट, इसलिए वो चेंज होता है, ठीक है, वरना वो मॉन्स्ट्रस बीस्ट ही रहता. बट आई वोंट चेंज, लेकिन मैं चेंज नहीं हो सकता. मिस्टर लैम सेज इन दैट वे
इन दैट वे नो यू वॉन्ट, हाँ मतलब उस तरीके से हाँ तुम बिल्कुल चेंज नहीं हो सकते। क्यों? बिकॉज देयर नो वन वुड बी दैट ब्यूटी, एंड सेम स्टोरी कहीं भी कंटिन्यू नहीं होती है, राइट? दैट्स अ फेयरी टेल। तो इफ़ यू ऑल्सो फील दैट somebody would come and kiss you and you will change, obviously you won't. So here's Mr. Lamb is very positive and he has a very good state of mind to talk, right? Now take a glimpse of the movie Beauty and the Beast, and there's a book also you can read at your leisure. Let's continue further. From here we have to start. And no one will kiss me ever, only my mother, and she kisses me on the other side of my face. And I don't like my mother to kiss me. She does it because she has to. So when they were talking about the movie, the story Beauty and the Beast, uh, Derry was telling that no one will ever kiss me. Why? Only my mother used to kiss, and that too on the other side, means the fine side of my face. She also doesn't like to touch me on the burnt side. All right, and I don't like that she kisses me. एंड शी इज़ डूइंग इट बिकॉज शी हैज़ टू। माँ क्यों करती है ऐसा? क्योंकि वो तो माँ है, उसे तो अपने बच्चे को प्यार दिखाना ही है, उसे करना ही है, तो वो माँ है इसलिए वो उसे प्यार करती हैं। लेकिन वो उसके बर्नट वाले जो चीक है, जो साइड है, उस पर उसे टच नहीं करती हैं। शी यूज टू टच हिम ऑन द अदर साइड। वाई शुड आई लाइक दैट? मतलब वो ऐसा करती हैं तो मुझे वो क्यों पसंद आएगा? आई डोंट केयर इफ एनीबडी एवर किसेज मी। एंड देन टू दिस perception of Derry, Mr. Lamb says, but do you care if you never kiss them? Them here refers to girls, okay? So here Mr. Lamb is saying that really you don't mind that you are never gonna kiss a girl in your life, a beloved in your life. Derry said, what? Mr. Lamb then explaining this part, them, right? Girls, pretty girls, long hair, large eyes, people you love. Here see why Mr. Lamb is trying to encourage him towards positivity, towards all the beautiful things in the world, so that instead of only focusing on his burnt face, he could look around and see the beauty, right? टिल नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग कि डेरी जो है बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है अपने उस बर्न फेस से, बिकॉज ऑल द वाइल व्हाट ही ऑब्जर्व्स कि लोग उसे देख के नेगेटिव इम्पैक्ट देते हैं, नेगेटिव इम्प्रेशन देते हैं, एंड ही हैज़ ऑल्सो गॉट वेरी नेगेटिव अबाउट पीपल कि कोई कुछ भी देख रहा हो बट ही थिंक्स कि लोग उसे ही देख रहे हैं, उसका बर्न साइड ही देख रहे हैं, एंड दे मस्ट बी फीलिंग रियली बैड इनसाइड। ऑलराइट, so here Mr. Lamb has started from girls, pretty girls, their long hairs and large eyes, but then he says people you love. Then he has diverted his mind towards the people in the world whom he could love, right? Derry said, who would let me? Not one. So Derry says on that कौन करने देगा मुझे ऐसा? कोई भी नहीं। मिस्टर लैम्ब सेड, हु कैन टेल? मतलब ये कौन जानता है, ये कौन कह सकता है? बिकॉज नोबडी हैज़ सीन द फ्यूचर एंड चेंज इज़ द ओनली एविटेबल थिंग इन दिस वर्ल्ड, ओनली कॉन्स्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड, सो इट कीप्स ऑन चेंजिंग। देन डेरी सेज, I won't ever look different. When I'm as old as you, I'll look the same. I'll still only have half a face. See, the pain of the child is coming out from the dialogues. What Derry says, मैं कभी अलग नहीं दिखूँगा। जब मैं आपके जितना बूढ़ा हो जाऊँगा तब भी मैं ऐसा ही दिखूँगा। I'll still look the same. I will only have a half face. Why? Because half is really, really gone. And it has taken his positive attitude, his life, his liveliness as well. Then Mr. Lamb says, so you will, but the world won't. The world's got a whole face, and the world's there to be looked at. Mr. Lamb कहते हैं, बिल्कुल हो सकता है तुम जैसा सोचते हो वैसा ही हो, but the world won't. Means
that world will not look at the same thing and it will not remain the same. It will change. Because the world has got a full face, a whole face, and there's a lot to be looked at. Derry says, "Do you think this is the world, this old garden?" Then Derry questions on that कि आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं, ये दुनिया है, ये छोटा सा एक पुराना सा गार्डन ये दुनिया है? Mr. Lamb says, "When I'm here, not the only one, but the world, as much as anywhere." Mr. Lamb कहते हैं, जब मैं यहाँ हूँ तो हाँ बिल्कुल ये दुनिया नहीं है, लेकिन मेरे लिए जैसे कि सभी के लिए दुनिया होती है जहाँ वो रहते हैं, जिस जगह उन्हें कंफर्ट होता है, तो यस, दिस इज़ जस्ट लाइक अ वर्ल्ड. डेरी सेज, डज योर लेग हर्ट यू? फिर डेरी कंसिडरेट होके मिस्टर लैम से पूछता है कि आपका पैर दर्द होता है अभी भी? मिस्टर लैम सेज, टिन डजंट हर्ट बॉय. कि टिन दर्द नहीं होता है, टिन में कुछ भी पेन नहीं होता है. डेरी सेज, व्हेन इट केम ऑफ डिड इट? मतलब जब एक्सप्लोड हुआ था, जब पैर उनका ख़राब हुआ था, व्हेन इट वॉज एक्सप्लोडेड, डैमेज्ड, क्या तब हुआ था? मिस्टर लैम सेज, सर्टेनली, हाँ बिल्कुल हुआ था. डैडी सेज, एंड नाउ, आई मीन वेयर द टिन स्टॉप्स एट द टॉप. सो मिस्टर लैम सेज, नाउ एंड देन होता रहता है अभी भी थोड़ा बहुत दर्द, और इन वेट वेदर स्पेशली. वेल, इट डजंट सिग्निफाई, इट डजंट मैटर एनी मोर, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एनी मोर. Derry says, oh, that's something else they all say. हाँ लोग भी ऐसा ही कहते हैं. Look at all those people who are in pain and brave and never cry and never complain and don't feel sorry for themselves. डेरी कहता है कि हाँ लोग भी ऐसी बातें करते हैं कि देखो उन लोगों की तरफ जो दर्द में होते हैं, ब्रेव होते हैं, वो कभी रोते नहीं, कंप्लेन नहीं करते और कभी भी खुद के लिए सॉरी फील नहीं करते. मीन्स दे डोंट पिटी देमसेल्व्स, दे ट्राई टू लिव with whatever deformities they have got. They start living with whatever they have, right? Mr. Lamb said, I haven't said that. मिस्टर लैम ने कहा, मैंने तो ऐसा नहीं कहा. क्योंकि मिस्टर लैम से क्या पूछा था उसने पूछा कि क्या इसमें दर्द होता है और कब होता है. तो मिस्टर लैम ने कहा कभी कभी होता है, स्पेशली इन वेट वेदर, बारिश के टाइम में, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अब मुझे, बिकॉज नाउ आई एम यूज टू ऑफ इट, राइट? इट डजंट सिग्निफाई, इट डजंट मैटर एनी मोर, इट डजंट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एनी मोर. तो डेरी उसी बात पे कहता, हाँ ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे लोग कहते हैं कि उन लोगों को देखो जिन्हें पेन होता है, जो पेन में होते हैं और कितने ब्रेव होते हैं, वो रोते नहीं, कंप्लेन नहीं करते एंड ब्ला 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 थिंग्स. तो मिस्टर लैम ने कहा, मैंने तो ऐसा नहीं कहा. डेरी सेड, एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्स ऑफ देन यू. थिंक, you might have been blinded or born deaf or have to live in a wheelchair or be daft. बेटा daft का मतलब होता है silly और you can say foolish, all right? Not mentally sound, okay? Or be daft in your head and rebel. So here Derry says कि हाँ लोग तो ये भी कहते हैं कि मतलब जो तुम्हारे साथ हुआ है वो तो ठीक है, उसे एक्सेप्ट कर लो, इट्स फार बेटर बिकॉज वर्स कुड हैपन टू यू एंड दैट हैज़ नॉट हैपन. सो यू शुड बी feeling really good about it. You should be thankful to God, right? कि तुम अंधे हो सकते थे, तुम डेफ बॉर्न हो सकते थे, मतलब डेफ मीन्स who are unable to listen, okay, hear. सो या तुम्हें व्हील चेयर पर ही पूरी ज़िंदगी रहना पड़ता, या तुम थोड़े से फुलिश बॉर्न होते, थोड़ा सा स्लो होते मेंटली, दैट यू नो फॉल एवरी टाइम एंड ड्रिबल, राइट? So here he is given all these excuses and all these things he used to listen from people, used to hear from people. So further he says, so Mr. Lamb says on Derry's dialogue that
People always tell that worst could happen, but you should be thankful. So Mr. Lamb says that, and that's all true, and you know it. और हाँ, ये तो सब सच है और तुम्हें पता है कि ये सब सच है, isn't it? Obviously the worst could happen, but you are saved. You only have got a half burnt face. I have only got one leg damaged and exploded. So even worst could happen, but we should be thankful that we are blessed and we are saved with only a little injury. Derry said on that, it won't make my face change. Yeah, it won't make my face change. मतलब इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इससे मेरा चेहरा नहीं बदलने वाला. Do you know, one day a woman went by me in the street. I was at a bus stop and she was with another woman and she looked at me and she said, whispered, only I heard her. She said, look at that. That's a terrible thing. That's a face only a mother could love. Now Derry started sharing his personal experiences, how people have made him feel bad about his burnt face. क्या बताया डेरी ने कि एक बार एक औरत जो है वो गली से गुज़र रही थी, मैं भी वहीं बस स्टॉप पर था, वो एक दूसरी औरत के साथ थी, उन्होंने मेरी तरफ देखा और विस्पर किया. मतलब पहले बच्चे ने क्या कहा, एंड शी सेड, उसके बाद कहा विस्पर्ड. मतलब पहले उसने कहा वो बोली, फिर कह रहे नहीं, उन्होंने सिर्फ विस्पर किया. ओनली आई हर्ड हर, मतलब सिर्फ मैंने सुना उन्हें. क्या कहा उस लेडी ने, लुक एट दैट, देखो उसे, दैट्स अ टेरिबल थिंग, कितनी बुरी चीज़ है. दैट्स अ फेस ओनली अ मदर कुड लव, मतलब कितना बुरा फेस है. मतलब ऐसे भद्दे से चेहरे को तो सिर्फ एक माँ ही प्यार कर सकती है. मीन्स अदर्स वुड बी स्कैर्ड, अदर्स वोंट लव. मिस्टर लैम सेड, सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर देन. तो मिस्टर लैम ने कहा, अच्छा तो तुम जो भी सुनते हो तुम उस पर बिलीव करते हो. सी, वेरी गुड पॉइंट हियर. डैडी सेड, इट वॉज क्रूअल, ये बहुत बुरा था, बहुत ही क्रूअल था, निर्दयी था. मिस्टर लैम सेड, मे बी नॉट मेंट एज सच, जस्ट समथिंग सेड बिटवीन देम. तो मिस्टर लैम ने कहा, हो सकता है उसका ऐसा कोई मतलब ना रहा, हो सकता है वो दोनों आपस में कुछ बात कर रही हों. डेरी सेड वेरी एडमेंटली, ओनली आई हर्ड इट, आई हर्ड. डेरी कहता है, मैंने सिर्फ सुना उस चीज़ को, उस बात को मैंने सुना. मिस्टर लैम सेज, and is that the only thing you ever heard anyone say in your life? देखिए कितनी अच्छी बात, कितनी सेंस मेकिंग बातें जो हैं वो कर रहे हैं मिस्टर लैम. दैट शोज़ हिज लेवल ऑफ मैच्योरिटी. मिस्टर लैम कहते हैं, तो क्या यही इकलौती बात है जो तुमने इस दुनिया में सुनी है, या तुम सुनते हो, क्या तुम ऐसी ही बातें सिर्फ सुनते हो? डेरी सेज, ओह नो, आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स. नहीं नहीं, मैंने बहुत सारी बातें सुनी हैं, बहुत सारी बातें मैं सुनता हूँ. मिस्टर लैम सेज, सो नाउ यू कीप योर ईयर शट. तो मिस्टर लैम कहते हैं, ठीक है, तो अब तुम अपने कान बंद करना शुरू कर दो. अगर तुम अपने बारे में बहुत सारा नेगेटिव स्टफ सुनते हो तो अब अपने कान बंद करना शुरू कर दो. डैडी सेज, यू आर पिक्यूलियर, you say peculiar things. Peculiar here refers to very strange or unusual. You ask questions I don't understand. Because here is the age difference and the level of maturity also differs here, right? So डेरी कहता है कि तुम बहुत स्ट्रेंज बातें करते हो, बहुत ही अनयूजुअल सी बातें करते हो और तुम ऐसी क्वेश्चंस करते हो जो मैं समझ नहीं पाता. मिस्टर लैम सेज, आई लाइक टू टॉक, मुझे बातें करना पसंद है. हैव कंपनी, लोगों के बीच रहना पसंद है. यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चंस, तुम्हें क्वेश्चंस के आंसर देने की ज़रूरत नहीं है. यू डोंट हैव टू स्टॉप हियर एट ऑल, द गेट्स ओपन, और तुम्हें यहाँ रुकने की भी ज़रूरत नहीं है, गेट खुला है. डैडी कहता है, यस बट. मिस्टर लैम उसे कट करते हुए कहते हैं, इंटरप्टिंग इन द मिड, आई हैव अ हाइव ऑफ बीज बिहाइंड दोज ट्रीज ओवर देयर. मतलब मेरे पास वहाँ पे एक बी हाइव है, बी हाइव मधुमक्खी का छत्ता वहाँ पे ट्रीज़ में. वो एक इशारा करते हुए कहते हैं, सम हियर बीज एंड दे से बीज बज़. कुछ लोग बीज की आवाज़ सुनते हैं, मधुमक्खियों की आवाज़ सुनते हुए कहते हैं कि वो बज़ करती हैं. और ओनोमेटोपोया में भी हमने ये पढ़ा है, जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच होता है, कि बज़ जो है वो साउंड है, किसका साउंड है, बी का, राइट. बज़, हम,
right? Okay. But when you listen to bees for a long while, they hum. तो वो कह रहे हैं कि लेकिन जब आप ज़्यादा समय के लिए, ज़्यादा लंबे समय तक सुनते हैं बीज़ की आवाज़ को, मधुमक्खियों की आवाज़ को, तो आप समझ जाएंगे कि वो बज़ नहीं करती हैं, वो करती हैं. एंड हम मीन्स सिंग, और हमिंग का मतलब होता है टू सिंग. आई हियर देम सिंगिंग माई बीज. हियर द एनिमल लव, द गार्डन लव हैज़ बिन रिफ्लेक्टेड बाय मिस्टर लैम्ब, that he has only got the company of his garden, the fruits, bees, leaves, weeds. All right. So here he says, मैं सुनता हूँ उन्हें गाते हुए, मेरी मधुमक्खियाँ. Daddy says, but I like it here. लेकिन मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है. I came in because I liked it. मैं अंदर भी आया क्योंकि मुझे अच्छा लगा. When I looked over the wall, जब मैंने ऊपर वॉल के ऊपर से देखा तो मुझे ये जगह अच्छी लगी. Mr. Lamb said, if you had seen me, you would not have come in. So, Mr. Lamb कहते हैं कि अगर तुमने मुझे देख लिया होता तो तुम अंदर नहीं आते. Daddy says, no. Mr. Lamb says, no. Daddy says, it hadn't have been trespassing. That वो कहता है हाँ मैं आपको देख लेता तो नहीं आता. तो Mr. Lamb कहते हैं सच में नहीं आते. तो डैडी कहता है हाँ फिर वो तो ट्रेसपासिंग हो जाता है ना, कि मैं विदाउट परमिशन जो है एंट्री ले रहा हूँ, तो मैं ऑब्वियसली आपको देख लेता तो नहीं आता. मिस्टर लैम्ब सेज दैट्स नॉट वाई. डैडी सेज आई डोंट लाइक बीइंग नियर पीपल. तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं लेकिन ये तो कोई रीज़न नहीं हुआ. डैडी कहता है मुझे लोगों के बीच में रहना, लोगों के पास रहना नहीं पसंद है. When they stare, स्पेशली क्यों नहीं पसंद है, क्योंकि जब वो स्टेयर करते हैं, when I see them being afraid of me, मतलब जब वो मुझे घूर के देखते हैं मेरी तरफ और जब मैं उन्हें देखता हूँ कि वो मुझसे डर रहे हैं, that is something I don't like, और इसलिए मुझे लोगों के पास रहना नहीं पसंद है. afraid of me. डैडी को अब आपको पता चल गया डैडी को लोगों के बीच रहना क्यों नहीं पसंद है, क्योंकि पहली चीज़ जब लोग उसे घूर के देखते हैं, he got to understand that they are looking on his burnt face. और दूसरी चीज़ when the people get afraid of him while looking at his burnt face. So Mr. Lamb says on this, you could lock yourself up in a room and never leave it. तुम अपने आप को कमरे में बंद कर लो और फिर कभी उसे मत छोड़ो. There was a man who did that. एक आदमी था जिसने ऐसा किया. Now he is giving an example. ठीक है. Let's proceed further to the next page. All right. So it says, he was afraid. You see? वो डरता था. वो आदमी क्या करता था? डरता था. देखो कैसे, ऑफ एवरीथिंग, वो हर चीज़ से डरता था. अब मिस्टर लैम्ब जो है डेरी को एक किसी इंसान का एक इंसिडेंट बता रहे हैं, राइट? थ्रू अ स्टोरी नाउ ही इज़ ट्राइंग टू लेट हिम अंडरस्टैंड. व्हेन डैडी सेज कि मुझे लोगों के बीच रहना नहीं पसंद है क्योंकि लोग मुझसे डर जाते हैं, ये सब देख के मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं ठीक है तो तुम एक कमरे में अपने आप को बंद कर दो और कभी उससे बाहर मत आओ. डोंट लीव दैट रूम एवर, बी इनसाइड इट ऑलवेज. उसके बाद में वो उसे एक स्टोरी बताते हैं कि एक आदमी था, उसने ऐसा किया. वो हर चीज़ से डरता था, हर चीज़ से. एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, हर चीज़ इस दुनिया में जो थी वो उसे डराती थी. अब बस माइट रन ओवर हिम. वो हमेशा क्या सोचता, बस उसके ऊपर से निकल जाएगी. और अ मैन माइट ब्रीथ डेडली जर्म्स ऑन टू हिम. कोविड-19 सिचुएशन यहाँ तो बताई गई है. सो कोई इंसान जो है वो मतलब थ्रू cough might be throwing germs onto him, or a donkey might kick him to death. या हो सकता है एक डंकी जो है उन्हें पैर मार दे और वो मर जाएं. और lightning ये बिजली कड़कने वाली बात है. lightning might strike him, might hit him down. हो सकता है बिजली उनके ऊपर गिर जाए. और ही माइट लव अ गर्ल एंड द गर्ल वुड लीव हिम. हो सकता है वो किसी लड़की को प्यार करे और वो लड़की उसे छोड़ के चली जाए. एंड ही माइट स्लिप ऑन अ बनाना स्किन, और वो एक बनाना पील पे जो है फिसल जाएं. एंड फॉल, एंड पीपल हु सॉ हिम वुड लाफ देयर हेड्स ऑफ. और वो क्या होगा जब बनाना स्किन पे कोई फिसल जाता है तो क्या करते हैं जब कोई गिरता है, वी यूजुअली लाफ, इजंट इट. तो उनको यही डर लगता कि हो सकता है वो बनाना पील पे फिसल जाएं और लोग उन्हें देख के हंस के पागल हो जाएं. सो ही वेंट इनटू दिस रूम
वो अपने रूम में गए एंड लॉक द डोर, उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया एंड गॉट इन टू हिज बेड एंड स्टेड देयर, और अपने बेड में चले गए और फिर वहीं रहने लगे। डैडी ने पूछा फॉर एवर, हमेशा के लिए? मिस्टर लैम्ब सेड फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए। तो डैडी ने कहा देन व्हाट, और फिर क्या हुआ? मिस्टर लैम्ब सेड a picture fell off the wall onto his head and killed him. मिस्टर लैम्ब ने क्या कहा, वो आराम से बेड में चले गए, अपना रहने लगे वहीं पे। उसके बाद क्या हुआ, उनके दीवार से जो है एक पिक्चर दीवार पे टंगी हुई थी, वो गिरी उनके सर पे और वो मर गए। डैडी लाफ्स अ लॉट, डैडी को बहुत हंसी आई इस बात पे। लैम्ब सेड यू सी, देखा तुमने? डैडी सेड बट यू स्टिल से पिक्यूलियर थिंग्स, लेकिन आप अभी भी बहुत ही स्ट्रेंज और अनयूजुअल बातें करते हैं। मिस्टर लैम्ब सेज पिक्यूलियर टू सम, कुछ लोगों को स्ट्रेंज लगती है, मीन्स एवरीबॉडी डोंट थिंक द वे। डैडी सेज व्हाट डू यू डू ऑल डे, आप पूरा दिन क्या करते हैं? नाउ मिस्टर लैम्ब इज शेयरिंग हिज रूटीन, sit in the sun, read books. Ah, you thought it was an empty house, but inside it's full. Books and other things. Full. तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं मैं धूप में बैठता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ। हाँ, तुम्हें लगा होगा कि ये घर एकदम खाली है, लेकिन अंदर से ये पूरा भरा हुआ है। बुक्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, फुल है ये। यहाँ पे देखिए फुल को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस ले किया गया है। डैडी सेज बट देयर आर्ट एनी कर्टेंस एट द विंडोज़, लेकिन यहाँ पे कोई विंडोज़ में कोई कर्टेंस नहीं है। मिस्टर लैम्ब सेज आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टेंस, मुझे कर्टेंस पसंद नहीं है, मुझे पर्दे नहीं पसंद। शटिंग थिंग्स आउट, शटिंग थिंग्स इन, मतलब चीज़ों को खोलना बंद करना। आई लाइक द लाइट एंड द डार्कनेस, मुझे जब दिन होता है उस वक्त का उजाला, रात का अंधेरा। एंड द विंडोज़ ओपन, और विंडो मुझे ओपन ही पसंद है। टू हियर द विंड, हवा को सुनने के लिए। डैडी सेज यस आई लाइक दैट, वाओ मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है ये सब कुछ। व्हेन इट्स रेनिंग, जब बारिश होती है कितना अच्छा लगता है। आई लाइक टू हियर इट ऑन द रूफ, मुझे तो छत से जो आवाज़ आती है मुझे बहुत अच्छा लगता है उसे सुनना। मिस्टर लैम्ब सेज सो यू आर नॉट लॉस्ट आर यू, नॉट ऑल टुगेदर। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि फिर तो तुम बिल्कुल भी लॉस्ट नहीं हो, मीन्स यू स्टिल एन्जॉय थिंग्स, नॉट ऑल टुगेदर। यू डू हियर थिंग्स, यू लिसन, तुम चीज़ों को सुनते हो, तुम उन्हें एन्जॉय करते हो। डैडी सेज दे टॉक अबाउट मी डाउनस्टेयर्स। अब दे टॉक अबाउट मी, यहाँ पे दे रेफ़र किया गया इनके पेरेंट्स के बारे में। डैडी कहता है वो लोग बात करते हैं मेरे बारे में, डाउनस्टेयर्स मतलब नीचे वाले फ्लोर में। When I'm not there, जब मैं वहाँ नहीं होता हूँ। What will he ever do, क्या करेगा ये बेचारा? What's going to happen to him when we have gone, क्या होगा जब हम लोग नहीं होंगे इसके साथ? However will he get on this world, कैसे ये जिएगा इस दुनिया में? कहता है इस बेरहम दुनिया में कैसे जिएगा मेरा बच्चा? Why? Because daddy has got a burnt face. तो parents are very they are protective towards him and they just get worried about him. Looking like that, मतलब ऐसा दिखते हुए वो कैसे survive करेगा? With that on his face, that refers to the burnt mark, right? Sorry, the burnt mark. That's what they say, और यही वो लोग कहते हैं। तो अभी तक जब मैं डैडी शेयर कर रहा था कि मैं बारिश सुनता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मिस्टर लैम्ब ने कहा अच्छा तुम सुनते हो चीज़ें, मतलब अच्छी भी चीज़ें सुनते हो, तुम्हें पसंद है, तो तुम पूरी तरह लॉस्ट नहीं हो। फिर डैडी बताता है कि मैं ये भी सुनता हूँ मेरे पेरेंट्स को ही बात करते हुए। सो दिस वे द चाइल्ड हैज़ गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रॉमेटिक सिचुएशंस, स्टिल nobody was there to soothe his heart and soul. And somewhere he's finding comfort here, sitting with Mr. Lamb and sharing and having a conversation about life. We have completed till here, where Derry says that he has heard his parents also talking and worrying about his life, and they never motivate or encourage him. Rather, what they do, they
try to think about him, they try to pack him in the house, they never allow him to go here and there. Though as a parent, what they need to do, they need to fill in confidence in that little boy that it's all right. If half of the face is burnt, it doesn't matter anymore, right? So let's proceed further to the next page, that is page number 63. So Mr. Lamb says, Lord boy, you have got 2 arms, 2 legs and eyes and ears. You have got a tongue and a brain. You will get on the way you want like all the rest. And if you choose and set your mind to it, you could get on better than all the rest. Here Mr. Lamb is trying to make him understand that you have got everything and you can do better than others if only you set your mind and if you choose to. All right? Daddy says, how? Same way as I do. So Mr. Lamb says, the same way I do. Daddy says, do you have any friends? क्या आपके पास दोस्त हैं? Mr. Lamb says, hundreds, बहुत सारे हैं. Daddy says, but you live by yourself in that house. It's a big house too. लेकिन आप तो इस घर में अकेले ही रहते हैं और ये बहुत बड़ा घर है. Mr. Lamb says, friends everywhere. हर जगह दोस्त हैं. People come in, everybody knows me. लोग आते हैं, लोग मुझे जानते हैं. The gates always open. दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है. They come and sit here and in front of the fire in winter. मतलब लोग आते हैं, यहाँ बैठते हैं. ठंडियों में फायर, यहाँ पे आग जलाई जाती है, उसके सामने बैठते हैं. Kids come for apples and pears and for toffee. I make toffee with honey. एंड यहाँ पे क्या हम समझ रहे हैं? मिस्टर लैम को जेली बनाना, टॉफ़ी बनाना, ही इज़ ऑलवेज एंगेज, ही कीप्स ऑन डूइंग सम और द अदर थिंग, राइट? एनीबडी कम्स, हर कोई आ सकता है. सो हैव यू, जैसे तुम आए हो. डैडी कहता है, बट आई एम नॉट अ फ्रेंड, लेकिन मैं दोस्त नहीं हूँ. मिस्टर लैम सेज, सर्टेनली यू आर, तुम बिल्कुल हो. सो फार एज आई एम कंसर्न, जहाँ तक मेरी बात है तो तुम मेरे दोस्त हो. वट हैव यू डन टू मेक मी थिंक यू आर नॉट, और ऐसा अभी तक तुमने कुछ किया भी नहीं है जिससे मुझे लगे कि तुम दोस्त बनाने के काबिल नहीं हो या तुम मेरे दोस्त नहीं हो. डैडी सेज, यू डोंट नो मी, आप मुझे जानते नहीं हो. यू डोंट नो वेयर आई कम फ्रॉम और इवन वट माई नेम इज़, और आप तो अभी तक मेरा नाम भी नहीं जानते. देन हाउ कैन यू से आई एम योर फ्रेंड? मिस्टर लैम सेज, why should that signify? Signify always refers to importance, right? That really, is that matter? Really, is that of any importance? Do I have to write all your particulars down and put them in a filling box there before you can be a friend? क्या मुझे तुम्हारे बारे में सारी चीज़ें लिख के कहीं पे और उसको क्या एक फिलिंग बॉक्स में डालना होगा, मतलब तुम्हें दोस्त बनाने से पहले? मतलब क्या दोस्ती से पहले कोई फॉर्म फिल करना होता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट करना होता है? डैडी सेज, आई सपोज नॉट. नो. डैडी कहता, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा. लेकिन मिस्टर लैम सेज, यू कैन टेल मी योर नेम, तुम अपना नाम बता सकते हो, इफ़ यू चूज़, अगर तुम चाहो तो. एंड नॉट इफ़ यू डिडंट, और नहीं भी अगर तुम नहीं चाहो. डैडी सेज, डैडी कहता है, मेरा नाम डैरी है. ओनली इट्स डेरिक, मतलब इनका रियल नेम है डेरिक, याद रखिएगा, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट. सो हिज नेम इज़ डेरिक, बट आई हेट दैट. बट ही डिडंट लाइक दैट. डैडी, इफ़ आई एम योर फ्रेंड, और आप मुझे डैडी कह सकते हो अगर आप मुझे अपना दोस्त कह रहे हो तो. यू डोंट हैव टू बी माइन, आप मुझे कह रहे हो, आपको मेरा दोस्त बनना है तो आप मुझे डैडी कह सकते हैं, लेकिन आप मेरे दोस्त नहीं हैं. आई चूज़ दैट. और ये नाम मुझे बहुत पसंद है. कौन सा नाम? डैरी. तो डैरी इज़ द नेम ही लाइक्स. मिस्टर लैम सेज, सर्टेनली, ओके, आई अग्री विद दैट एंड आई लाइक दैट नेम, डैरी. डैडी सेज, आई माइट नेवर कम हियर अगेन, मैं शायद यहाँ कभी ना हूँ. यू माइट नेवर सी मी अगेन, और शायद आप मुझे कभी देख ना पाएँ. एंड देन आई कुडंट स्टिल बी अ फ्रेंड, और फिर तो मैं आपका दोस्त नहीं रहूँगा. मिस्टर लैम कहते हैं, वाई नॉट, क्यों नहीं? डैडी सेज, हाउ कुड आई, कैसे? यू पास पीपल इन द स्ट्रीट एंड यू माइट इवन स्पीक टू दैम, बट यू नेवर सी दैम अगेन. इट डजंट मीन दे आर फ्रेंड्स. तो डैडी कहता है कि कैसे रहूँगा मैं आपका दोस्त?
आप जैसे गलियों में हम घूमते हैं, रास्ते में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं और फिर उन्हें कभी नहीं देखते, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि वो हमारे दोस्त बन गए हैं। Here, this boy is also talking lot of sense, isn't it, children? See further what happens. This is getting really, really exciting. So further he says, when he said that it doesn't mean that people become friends if they share some conversation, some talk with each other, right? Some words with each other. Mr. Lam says, doesn't mean they are enemies. Either, does it? लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं होता कि दुश्मन होते हैं दुश्मन भी तो नहीं होते हैं, राइट? डैडी कहता है, नो दे आर जस्ट नथिंग पीपल, दैट्स ऑल। हाँ, वो कुछ भी नहीं होते हैं, वो सिर्फ लोग होते हैं और बस। मिस्टर लाम कहते हैं, पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग, लोग कभी भी नथिंग नहीं होते हैं, नेवर, कभी नहीं। डैडी कहता है, देयर आर सम पीपल आई हेट, कुछ लोग हैं जिन्हें मैं हेट करता हूँ, क्यों? लेट्स सी। मिस्टर लाम सेज, that would do you more harm than any bottle of acid. Acid only burns your face. देखिए, बहुत बड़ी बात फिर से यहाँ पे कही है, किसने? मिस्टर लैम ने कहा, फिर तो ये तुम्हें बहुत ज़्यादा हार्म करेगा। What? हेट्रेड। हेट्रेड किससे भी ज़्यादा हार्मफुल है? इट्स मोर हार्मफुल देन द बॉटल ऑफ एसिड। एसिड ने सिर्फ तुम्हारा चेहरा जलाया है। आगे क्या हो सकता है यहाँ पे? If I give you fill in the blanks, acid has only burnt your face, but this hatred is filling your heart and mind and soul, so it will kill you inside. Daddy says, only burns your face. सिर्फ तुम्हारा चेहरा जला है। तो डैडी कहता है, only, सिर्फ? It's a big thing. It's a blunder happened with me and I'm living with this. This is terrible. मिस्टर लैम कहते हैं, लाइक अ बॉम्ब ओनली ब्लू अप माई लेग, जैसे कि एक बॉम्ब ने सिर्फ मेरा पैर उड़ा दिया। देयर वर्स थिंग्स कैन हैपन, और भी बुरा हो सकता था। यू कैन बर्न योर सेल्फ अवे इन साइड, तुम अपने आप को अंदर से जला दोगे। डैडी सेज, आफ्टर आई हैड कम होम वन पर्सन सेड, जब मैं हॉस्पिटल से घर आया। अब डैडी जो हैं अपनी कहानी बता रहे हैं कि जब वो जल गए थे और फिर जब वो हॉस्पिटल से घर आए तो एक आदमी ने कहा, he would have been better off stopping in there. Off stopping in there का मतलब in the hospital. इसे हॉस्पिटल में ही रखना चाहिए था, रखना बेटर होता। He would be better off with others like himself. वो अपने ही जैसे लोगों के बीच होता, मतलब burnt लोगों के बीच होता। She thinks blind people only ought to be with other blind people and idiot boys with idiot boys. तो डैडी अब अपनी खुद की एक एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि कैसे लोगों ने कहा कि इसे वहीं पे छोड़ देना चाहिए था, हॉस्पिटल में ही, या अपने जैसे लोगों के बीच रहता। और वैसे भी लोगों को अपने अलाइक पीपल के साथ रहना चाहिए। मीन्स इफ़ समबडी इज़ डेफ तो वो डेफ लोगों के साथ रहे, इफ़ समवन इज़ ब्लाइंड तो वो ब्लाइंड लोगों के बीच रहे, जिससे उन्हें अपने कोई चीज़ के ना होने का, अपनी जो अनप्रिविलेजेस हैं उनका एहसास नहीं होगा। मिस्टर लैम सेज, एंड पीपल विद नो लेग ऑल टुगेदर, और जिन लोगों के पैर नहीं होते उन्हें एक साथ रहना चाहिए। डैडी सेज, दैट्स राइट, हाँ बिल्कुल सही। मिस्टर लैम सेज, व्हाट काइंड ऑफ अ वर्ल्ड वुड दैट बी, ये कैसी दुनिया होगी? डैडी सेज, एटलीस्ट देयर वुड बी नो बडी टू स्टेयर एट यू बिकॉज यू वर नॉट लाइक देम। एटलीस्ट वहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं होगा ना जो आपकी तरफ स्टेयर करेगा क्योंकि आप उनके जैसे नहीं दिखते हैं। मिस्टर लैम सेज, so you think you are just the same as all the other people with burnt faces just by what you look like? तो मिस्टर लैम कहते हैं, तो तुम्हें क्या लगता है तुम सारे बर्न लोगों जिनका फेस जला होता है तुम बिल्कुल उनके जैसे हो? क्योंकि सिर्फ तुम्हारा चेहरा जला हुआ तुम उनकी तरह दिखते हो, इसका मतलब तुम उन्हीं के जैसे हो। What it means here? It means a likeness here means the qualities of your personality. Nobody is similar. Individual difference theory always proves it, isn't it? So here also Mr. Lam questions it. Everything is different. हर चीज़ अलग होती है. Everything's the same, but everything is different. हर चीज़ जो दिखने में सेम होती है वो तब भी अलग होती है in itself, अपने आप में। कैसे? बाहर से जैसे सभी लोग ह्यूमंस ही दिखते हैं, but from inside some are very kind, very sweet, very gentle, some are not like them, right? So you'll find different kind of personalities. So personality is something that a person can grow within and
can get fame out of that. Derry says, how do you make all that out? आप कैसे ये सारी चीज़ें कर लेते हैं? मीन्स हाउ यू टेल अबाउट दीज थिंग्स, मतलब कैसे सब अलग होता है? मिस्टर लैम कहते हैं, देखने से, सुनने से, सोचने से। सी, चीज़ें कैसे अलग होती हैं? हमारे सोचने से, हमारे सुनने से, हम क्या सुनना पसंद करते हैं, हम क्या देखते हैं, कैसा बोलते हैं। सो इट डिफर्स, इट मैटर्स, राइट? हमारी थिंकिंग मैटर करती है। व्हाट थिंग्स वी लाइक टू वॉच, वो मैटर करता है। हम क्या सुनना पसंद करते हैं, दैट मैटर्स, एंड दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस इन द वर्ल्ड। डैडी सेज, आई वुड लाइक अ प्लेस लाइक दिस, मुझे बिल्कुल ऐसी ही जगह पसंद है। अ गार्डन, आई वुड लाइक अ हाउस विद नो कर्टेन्स, मुझे घर भी बिल्कुल ऐसा ही चाहिए जिसमें कर्टेन्स ना हो। मिस्टर लैम कहते हैं, द गेट इज़ ऑलवेज ओपन, मीन्स यू आर ऑलवेज वेलकम। डैडी सेज, बट दिस इज़ंट माइन, लेकिन ये मेरा थोड़ी है। मिस्टर लैम कहते हैं, एवरीथिंग इज़ योर्स इफ़ यू वॉन्ट इट, सब कुछ तुम्हारा है अगर तुम चाहते हो। व्हाट्स माइन इज़ एनीबडीज़, जो मेरा है वो सभी का है, किसी का भी है। डैडी कहता है, सो आई कुड कम हियर अगेन, तो क्या मैं यहाँ दोबारा आऊँ? इवन इफ़ यू वर आउट, अगर आप यहाँ ना रहें तो भी, आई कुड कम हियर, क्या मैं आ सकता हूँ यहाँ पे? मिस्टर लैम सेड, सर्टेनली, यू माइट फाइंड अदर्स हियर ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल तुम आ सकते हो, और हो सकता है तुम्हें यहाँ पे कुछ और लोग मिले। डैडी कहता है, ओह, लुक एट द एक्सप्रेशन हियर, ओह। मिस्टर लैम कहते हैं, वेल दैट नीड नॉट स्टॉप यू, यू नीड नॉट माइंड, लेकिन तुम्हें इन सब चीज़ों से नहीं रुकना चाहिए। मीन्स और लोग अगर यहाँ होते हैं तो इससे तुम्हें रुकने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें इसे माइंड नहीं करना चाहिए। डैडी कहता है, इट वुड स्टॉप देम, मतलब इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट वोंट स्टॉप मी बट इट वुड स्टॉप देम, ये उन्हें स्टॉप करेगा, उन लोगों को रोक देगा। दे वुड माइंड मी, दे वुड माइंड मी, वो माइंड करेंगे मुझे, इवन इफ़ आई डोंट डू दैम। When they saw me here, they look at my face and run. जब लोग मुझे देखेंगे यहाँ पे, वो मेरा चेहरा देखेंगे और भाग जाएंगे। Tell me students how you like the story and we'll continue further. Harry said, oh, so that was an expression. I have already explained you this expression. Oh. To that Mr. Lamb said, well, that need not stop you. You need not mind. Here Mr. Lamb understood that as Derry has already said that he don't want to be near people, he don't want to be surrounded with people. Why? Because he is trying to hide himself, his burnt face from others. When others see his face, they used to make bad faces, they used to talk very ugly about him, very devilish about him. So that's why he's just afraid of people watching him, staring him, looking very furiously at his burnt face and talking bad about him. So Derry simply said that it would stop them, that I don't mind coming here if people are there. Still, they would stop coming to your garden just because of me, because they mind me, and when they saw me here, they look at my face and run. So people are prone to run whenever they look at my face. Further, the stories goes on and the conversation continues, where Mr. Lamb said, they might not. That Mr. Lamb was just trying to pacify Derry to accept things around. Alright, to accept what people are doing, and also to accept that not accepting their views, right, is the only way he can live, and he can live freely. तो मिस्टर लैम बार बार समझाना चाहते थे डेरी को कि इट्स ऑल राइट, डोंट गिव much ado or don't give much of interest to others' talk, much of attention on others. Let them think what they think. You don't care. You have to take the risk. So would they? Means it doesn't matter. They might mind being you here, being your face burnt, or they might not.
and you have to take the risk of coming out and showing yourself up to people the way you are, and so would they. You have to take that risk, and they have to, means people have to take the risk of accepting you as you are. You need not to change for them, and obviously they will also not, they are not also not going to change their ways, so they also need to accept you. If they are not, don't mind them. To that Derry said, no, you would. You might have me and lose all your other friends, because nobody wants to stay near me if they can help it. तो डेरी कहता है कि नहीं, मतलब यू वुड बी एट रिस्क। अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ हूँ तो आपको सबको छोड़ना पड़ेगा, आपके सारे दोस्त, क्योंकि कोई भी मेरे पास नहीं आना चाहेगा अगर उनका बस चले तो। मतलब if they could remove such ugly people from the world, so they will try to do that. बस अब now people can't help it, right? लोगों का बस नहीं चलता है भाई। कोई भी एक ugly faced person, if somebody is passing near to you, you can't help it, you can't let the person not pass from there. So Mr. Lamb said, I have not moved. Mr. Lamb ने कहा कि तुम्हें भी मूव होने की ज़रूरत नहीं है, पीपल विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग यू। एंड वट ही सेड, आई हैव नॉट मूव्ड, कि मैं भी तो नहीं हिला, मैं भी तो कहीं नहीं गया, आई एम लिविंग हियर। डेरी सेड, नो। मिस्टर लैम्ब सेड, व्हेन आई गो डाउन द स्ट्रीट द किड्स शाउट लेमी लैम्ब। Already told you this, please remember. Why he was called Lamey Lamb? Lame refers to the person with leg deformity or the person unable to walk, lame, all right? इसीलिए मिस्टर लैम्ब को बच्चे लेमी लैम्ब कहते थे, राइट? मीन्स लंगड़ा, मेमना। बट दे स्टिल कम इन टू द गार्डन, लेकिन फिर भी वो गार्डन में आते हैं। इन टू माई हाउस, वो घर भी आते हैं। इट्स अ गेम, ये एक खेल जैसा है। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी, वो मुझसे डरते नहीं हैं। वाई शुड दे बी? एंड कोई ऐसा रीज़न भी नहीं है कि उन्हें मुझसे डरना चाहिए, बिकॉज आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ देम, दैट्स वाई नॉट। और क्योंकि मैं भी उनसे नहीं डरता, राइट? सो दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी ऑल्सो, राइट? डेरी सेड, डिड यू गेट योर लेग ब्लोन ऑफ इन अ वॉर? तो डेरी उनसे फिर पूछता है कि क्या आपका पैर वॉर में मतलब ब्लोन ऑफ हो गया था, डैमेज हुआ था? मिस्टर लैम्ब सेड, यस सर्टेनली, हाँ। डेरी सेड, हाउ विल यू क्लाइंब ऑन अ लैडर एंड गेट द क्रैब एप्पल्स डाउन देन? अच्छा, हियर यू विल गेट टू फाइंड कि एकदम से स्टार्ट में just to sway the topic from Derry's burnt face, Mr. Lamb ने क्या कहा था? He said that I would like to have a ladder and will climb and get the crab apples, right? I will pull it down and then I'll make jelly out of them. And if you like, you would help me. So यहाँ पे डेरी वही क्वेश्चन करता है कि आप सीढ़ी कैसे चढ़ते हैं? हाउ वुड यू क्लाइंब अ लैडर? आप सीढ़ी कैसे चढ़ते हैं? और क्रैब एप्पल्स को तोड़ते कैसे हैं, उन्हें नीचे कैसे लाते हैं? मिस्टर लैम्ब ने कहा, ओह देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव लर्न टू डू एंड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर इट। तो मिस्टर लैम्ब ने कहा, ओह बहुत सारी चीज़ें हैं, आई हैव लर्न विद टाइम। ईयर्स, बहुत साल लगे। आई टेक इट स्टीडी, मैं आराम से काम करता हूँ। बट आई लव टू डू माई थिंग्स and I have learned, okay, instead of my deformity. Derry said to that, if you fell and broke your neck, you could lie on the grass and die if you were on your own. तो डेरी उन्हें कहता है कि अगर आप गिर गए और आपकी गर्दन टूट गई और आप ज़मीन पर पड़े रहें, गिर गए ज़मीन पर और आप मर गए, तो अगर आप अपने से सब चीज़ें करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि आप गिर जाएं, आपकी गर्दन टूट जाए और आप घास पे पड़े हों और मर जाएं, मरे हुए हों। मिस्टर लैम्ब कहते हैं, आई कुड, या। डेरी कहता है, यू सेड आई कुड हेल्प यू। तो मिस्टर लैम्ब वहाँ कहते हैं, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, हो सकता है ऐसा। डेरी कहते हैं कि यू सेड आई कुड हेल्प यू, आपने कहा था कि मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। तो हियर ही वॉन्टेड टू हेल्प हिम, दैट्स वाई ही रोज दैट क्वेश्चन टू मिस्टर लैम्ब, एंड देयर ही वॉन्टेड मिस्टर लैम्ब टू से दैट आई कांट क्लाइंब द लैडर बट यू कैन हेल्प मी। तो ऐसा ही कुछ डेरी का इरादा था, लेकिन मिस्टर लैम्ब ने उस पर कोई आंसर नहीं दिया।
मिस्टर लैम ने क्या कहा, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने धीरे धीरे टाइम के साथ में हैव लर्न टू डू देम, राइट। उस पर डेरी उन्हें डराता भी है कि अगर कभी आप गिर गए और मर गए तो, अगर आप ये सब खुद से करेंगे तो नोबडी इज़ देयर टू हेल्प यू ऑल्सो, सो शैल आई। मिस्टर लैम सेड इफ़ यू वांट टू, हाँ अगर तुम चाहते हो तो बिल्कुल मेरी हेल्प कर सकते हो। डेरी सेड बट माई मदर विल वॉन्ट टू नो वेयर आई एम, लेकिन मेरी माँ जानना चाहेंगी कि मैं कहाँ हूँ। इट्स 3 miles होम अक्रॉस द फील्ड्स, मतलब खेतों से होते हुए ये करीब 3 मील दूर है मेरा घर यहाँ से। आई एम 14, मैं सिर्फ 14 ईयर्स का हूँ। बट दे स्टिल वॉन्ट टू नो वेयर आई एम, मैं 14 ईयर्स का हूँ लेकिन फिर भी पेरेंट्स चाहते हैं कि उन्हें पता हो मैं कहाँ हूँ। सो हियर डेरी जस्ट वॉन्टेड टू गिव द इम्प्रेशन दैट ही इज़ ग्रोन अप, he is mature enough. Still parents get worried that where is he. Why? Because he has got a burn face and people might get agitated or fears over him and he might meet with an accident. So fearing all that, parents don't allow him to go, very far. सो मिस्टर लैम सेड पीपल वरी, हाँ लोग चिंता करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पेरेंट्स हैं तो लोग चिंता करते हैं। डेरी कहता है पीपल फस, नहीं लोग सिर्फ परेशान करते हैं और परेशानी क्रिएट करते हैं, दैट्स इट। मिस्टर लैम सेड गो बैक एंड टेल देम, जाओ फिर उन्हें बता दो। डेडी कहता है इट्स 3 miles, प्लीज़ नोट इट डाउन, इट्स 3 miles। मिस्टर लैम सेड इट्स अ फाइन इवनिंग, यू हैव गॉट लेग्स, बहुत अच्छी सी शाम है और तुम्हारे पास पैर भी हैं। डैडी कहता है वंस आई गॉट होम दे वुड नेवर लेट मी कम बैक। डैडी कहता है कि अगर मैं एक बार घर पहुंच गया तो माई पेरेंट्स वुड नेवर लेट मी कम बैक हियर। मिस्टर लैम सेड वंस यू गॉट होम यू वुड नेवर लेट योर सेल्फ कम बैक। कहते हैं कि तुम एक बार घर पहुंच गए तो तुम खुद ही नहीं आना चाहोगे यहाँ पे वापस। डैडी कहता है यू डोंट नो वॉट आई कुड डू, आपको नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। मिस्टर लैम सेज नो ओनली यू नो दैट, हाँ मुझे नहीं पता, वो तो सिर्फ तुम्हें पता होगा ना तुम क्या कर सकते हो। डैडी कहता है इफ़ आई चूज़, एंड देन हियर ही वॉज इंटरप्टेड बाय मिस्टर लैम, इफ़ यू चोज आई डोंट नो एवरीथिंग बॉय, आई कांट टेल यू वॉट टू डू। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि हाँ अगर तुम चूज़ करो तो, मतलब यहाँ पे जब डेरी के मुंह से निकला इफ़ आई चोज़, तो यहाँ पे वो क्या कहना चाहता है, दैट ही हैज़ द विल टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, वो जो चाहे वो कर सकता है। और यही एक बात मिस्टर लैम्ब उसे स्टार्ट से समझाना चाह रहे थे व्हेन ही वाज टॉकिंग अबाउट पीपल, व्हाट पीपल टॉक, हाउ दे फील एंड एवरीथिंग ऑल अराउंड, एंड पेरेंट्स गेट वरीड दैट व्हाट ही विल डू इन लाइफ। सो हियर दैट आउटकम हैज़ बीन अचीव्ड बाय मिस्टर लैम्ब। मिस्टर लैम ने बातों ही बातों में अपनी कॉन्वर्जेशन के ज़रिए डेरी को ये एहसास करा दिया है कि अगर वो चाहे, इफ़ ही हैज़ द विल पावर, इफ़ ही इज़ डिटरमिन्ड, ही कैन अचीव एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो मिस्टर लैम कहते हैं हाँ अगर तुम चाहो तो। आई डोंट नो एवरीथिंग बॉय, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता, बट आई कान टेल यू वॉट टू डू, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि तुम्हें क्या करना चाहिए, दैट यू हैव टू चूज़ वॉट यू वॉन्ट टू डू, राइट। So hope you got till now. Let's continue further. Hope you are liking the story, and you must be associating the incidents, few of the incidents with your life as well, isn't it? You must have got in conversation with some or the other person with whom you have gained a lot of insight for life, for who must have encouraged you or motivated you to do a lot that you can actually. But what we actually do is we never realize our potential, and then someone comes to our life, enlightens us, gives us the insight, and then we are ready because we have got the motivation, right? We have sought the inspiration, and now we are ready to win the world. So here Derry कहता है हाँ आप मुझे नहीं बताना चाहते मुझे क्या करना चाहिए, बट दे टेल मी, दे अगेन रेफर्स टू पेरेंट्स, प्लीज़ रिमेंबर दैट, सो पेरेंट्स। मिस्टर लैम सेज डू यू हैव टू अग्री, तो क्या तुम्हें हर बात मानने की ज़रूरत है। डैडी कहता है आई डोंट नो व्हाट आई वांट, मुझे नहीं पता मैं क्या चाहता हूँ, आई वांट समथिंग
नो वन एल्स हैज़ गॉट और एवर विल हैव। मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ जो आज तक शायद किसी को भी ना मिला हो और शायद किसी ने भी ना चाहा हो। समथिंग जस्ट माइन, जो कि सिर्फ मेरा हो, जस्ट लाइक दिस गार्डन, बिल्कुल इस गार्डन की तरह। आई डोंट नो व्हाट इज़ इट, मुझे नहीं पता। मिस्टर लैम कहते हैं यू कुड फाइंड आउट, तुम ढूंढ लोगे समय के साथ में, यू विल फाइंड आउट व्हाट यू वांट। डैडी सेज हाउ, कैसे? Again, Mr. Lamb says, waiting, watching, listening. Right? So here he says, have patience. You have to wait for things. You have to watch things carefully and you have to listen to everything around you to find your motivation. Sitting here or going there. मतलब यहाँ बैठे हुए, कहीं जाते हुए. If I have to see to the bees, I'll have to see to the bees. तो मिस्टर लैम कहते हैं कि तुम कहीं से भी इंस्पिरेशन ढूंढ सकते हो. यू कुड फाइंड आउट दैट व्हाट यू वांट इन लाइफ. बैठे हुए, यहाँ वहाँ जाते हुए, एनीवेयर. फिर वो कहते हैं कि मुझे अपनी बीज को देखने जाना है. डैडी कहता है दोज आर द पीपल हु कम हियर, डू दे टॉक टू यू, आस्क यू थिंग्स. अब डैडी का क्वेश्चन होता है कि जो लोग यहाँ पे आते हैं, और लोग जो आते हैं, क्या वो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, वो आपसे बात करते हैं? मिस्टर लैम से सम डू सम डोंट. हाँ, कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं. आई आस्क देम, आई लाइक टू लर्न. वेरी ब्यूटिफुल थिंग हियर अगेन सेड बाय मिस्टर लैम. तो मिस्टर लैम कहते हैं कि मैं पूछता हूँ, मुझे जानना बहुत पसंद है, मुझे नई चीज़ें सीखना बहुत पसंद है. आई लाइक टू लर्न. डैडी सेड आई डोंट बिलीव इन दैम. मतलब मैं नहीं बिलीव करता आप जो बातें कह रहे हैं. आई डोंट थिंक एनी बॉडी एवर कम्स. यू आर ऑल हियर बाय योर सेल्फ एंड मिजरेबल एंड नो वन वुड नो इफ़ यू वर अलाइव और डेड एंड नो बडी केयर्स. यहाँ पे डैडी बहुत ही एक सही बात कह रहे हैं जो अब तक हमें स्टोरी में नहीं पता थी. बिकॉज मिस्टर लैम वॉज कंटिन्यूसली टेलिंग दैट पीपल कम एंड गो, राइट? बट वॉट इज़ हैपनिंग हियर, सी. आई डोंट थिंक एनीबडी एवर कम्स. मुझे नहीं लगता कोई कभी आता होगा. आप यहाँ पे अकेले रहते हैं एंड मिजरेबल. ऑब्वियसली हिज कंडीशन, बिकॉज ही डजंट हैव एनी कर्टेंस, देयर इज़ अ वेरी बिग हाउस, नोबडी लिविंग इन, एंड ही इज़ ऑल अलोन देयर, राइट? एंड फर्दर ही सेज, डैडी कहता है कि किसी को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता आप जिंदा हैं या मर गए, और नोबडी केयर्स फॉर यू. मिस्टर लैम कहते हैं यू थिंक व्हाट यू प्लीज़. हाँ, तुम सोच सकते हो, तुम्हें जो अच्छा लगे वो तुम सोचो. डैडी कहता है ऑल राइट देन टेल मी सम ऑफ देयर नेम्स. अच्छा ठीक है, तो मुझे कुछ उनके नाम बताइए जो लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि अगर आप उनसे बात करते हैं, वो आपसे बात करते हैं, कोई भी बात करता है, कुछ भी लोग, तो उनके नाम बताइए. वेरी इंटेलिजेंट बॉय हियर. मिस्टर लैम सेज व्हाट आर नेम्स, टॉम, डिक और हैरी. नाम में क्या रखा है? गेटिंग अप, उठते हुए कहते हैं आई एम ऑफ डाउन टू द बीज. मैं जा रहा हूँ अपनी बीज को देखने. डैडी कहते हैं आई थिंक यू आर डाफ्ट, क्रेजी. डैडी कहता है कि आप ना एकदम क्रेजी हैं, राइट? एंड मिस्टर लैम सेज दैट्स अ गुड एक्सक्यूज़. हाँ, ये अच्छी बात है, ये अच्छा बहाना है तुम्हारे लिए. डैडी व्हाट फॉर, यू डोंट टॉक सेंस. हाँ, क्या अच्छा बहाना है, मैं क्या कह रहा हूँ? आप वैसे भी कभी भी सेंस मीनिंगफुल बातें तो करते नहीं, यू नेवर टॉक एनीथिंग सेंस, राइट? मिस्टर लैम सेज गुड एक्सक्यूज़ नॉट टू कम बैक. हाँ, ये अच्छा बहाना है तुम्हारे ना वापस आने का. एंड यू हैव गॉट अ बॉन्ड अप फेस एंड दैट्स अदर पीपल्स एक्सक्यूज़. और मिस्टर लैम कहते हैं कि हाँ, ये तुम्हारा अच्छा बहाना है कि मैं एक क्रेजी और सिली आदमी हूँ, यहाँ पे कोई नहीं आता, नोबडी केयर्स, मुझे लोगों के नाम नहीं पता है, आई डोंट टॉक सेंस. ये तुम्हारे लिए अच्छा बहाना है कि तुम्हें वापस नहीं आना यहाँ पे. और जैसे लोगों के पास अच्छा बहाना है कि तुम्हारा चेहरा जो है बहुत बर्नड अप है, दैट्स वाई दे डोंट टॉक टू यू, दे डोंट कम नियर टू यू. बिल्कुल वैसे ही. सो हियर यू मस्ट हैव गॉट द कंपैरिजन मिस्टर लैम्ब हैज़ गिवन. डैडी सेज यू आर लाइक द अदर्स. तुम बिल्कुल दूसरों की तरह ही हो. यू लाइक टू से थिंग्स लाइक दैट. आप भी बिल्कुल वैसे ही बातें करते हो जैसे सब करते हैं. इफ़ यू डोंट फील सॉरी फॉर माई फेस, यू आर फ्राइटेंड ऑफ इट. और अगर आपको मेरे फेस पे पिटी नहीं होती, इफ़ यू डोंट सिंपथाइज विद माई फेस, देन यू आर एक्चुअली फ्राइटेंड ऑफ इट, यू आर अफ्रेड ऑफ माई फेस. एंड इफ़ यू आर नॉट फ्राइटेंड, और अगर आप डर नहीं रहे हैं, यू थिंक आई एम अगली एज अ डेविल, तो आपको ये लगता होगा कि मैं एकदम शैतान जैसा एकदम भद्दा दिखता हूँ. आई एम वेरी अगली, आई एम अ डेविल. आप सोचते होंगे मैं एक डेविल हूँ, मैं एक शैतान हूँ. डोंट यू ऐसा नहीं सोचते हैं आप? चिल्ला के कहता है डैडी. मिस्टर लैम डजंट रिप्लाई. मिस्टर लैम कोई रिप्लाई नहीं देते हैं. ही हैज़ गॉन टू हिज बीज, और वो चुपचाप अपनी बीज की तरफ चले जाते हैं.
Daddy, in a very quiet manner, he says, "No, you don't. I like it here." Then he pauses. Daddy gets up and shouts. एकदम धीरे से कहता है डैडी कि नहीं, आप ऐसे नहीं हो, आप ऐसा नहीं सोचते होगे. आई लाइक इट हियर, मुझे ये जगह पसंद है, मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे. आई एम गोइंग, फिर चिल्लाते हुए कहता है, मिस्टर लैम की तरफ चिल्लाते हुए कहता है, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, बट आई विल कम बैक, लेकिन मैं वापस आऊँगा, आप देखना, यू वेट, आई कैन रन, आई हैवंट गॉट अ टिन लेग, आई विल बी बैक. और फिर क्या कहते हैं मिस्टर लैम को, आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूँ, मेरे पास टिन लेग थोड़ी है, आई विल बी बैक, मैं वापस ज़रूर आऊँगा. देन डैडी रन्स ऑफ. उसके बाद साइलेंस हो जाता है एंड द साउंड ऑफ द गार्डन अगेन, जो आपको इन द वेरी बिगनिंग साउंड का, गार्डन का जो साउंड बताया गया था, राइट, buzzing of bees, and there were alternate voices, right, of the garden. So all is here. Further it says that Mr. Lamb, right, मिस्टर लैम यहाँ पे आप खुद ही से बातें करते हैं, बिकॉज नाउ डैडी इज़ ऑफ टू होम, डैडी घर जा चुका है. कहते हैं, देयर माई डियर्स दैट यू सीन टू, यू नो, वी ऑल नो. तो मिस्टर लैम जो चीज़ें हुई होती हैं उन्हीं की तरफ इशारा करते हैं, देखा मेरे प्यारों, तुम सब ने देखा, दैट्स यू सीन टू, तुमने ज़रूर देखा होगा, ये तो तुम देखते ही रहते हो. यू नो, तुम सब जानते हो, वी ऑल नो, हम भी सब जानते हैं, हम सब जानते हैं. I'll come back, मतलब अभी डैडी ने जो कहा कि मैं वापस आऊँगा, तो people also say that will come back but they never do. दो, मतलब वो ऐसा कभी नहीं करते हैं, वो वापस नहीं आते हैं, जो भी एक बार चला जाता है. Not them. Never do come back. They never come back. And the garden noises fade. You know, ये एक प्ले है, तो इसे प्ले की तरह परफॉर्म किया गया, इसीलिए पीछे बैकग्राउंड नॉइजेस भी हैं. ऑल राइट, कमिंग टू सीन 2, डैरीज हाउस. अब पहला सीन था मिस्टर लैम का गार्डन और सेकंड सीन है डैरी का हाउस. ऑल राइट, सो लेट्स कंटिन्यू फर्दर. मदर सेज हियर, यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम, तुम्हें लगता है कि मुझे उनके बारे में पता नहीं. यू थिंक, तुम्हें ऐसा लगता है. आई हैवंट हर्ड थिंग्स, तुम्हें लगता है मैंने बातें सुनी नहीं है. डैडी कहता है, यू शुडंट बिलीव ऑल यू हियर. डैडी सेज कि आप जो भी सुनती हैं उस पर आपको बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे मदर मिस्टर लैम के ही बारे में बात कर रही होती है कि तुम वहाँ गए थे, मुझे सब पता है, लोग क्या बातें करते हैं, मुझे वो सब पता है उनके बारे में. मदर सेज, बीन टोल्ड, वॉन्ड, तुम्हें बताया है, वॉर्न भी किया है. यू हैव नॉट लिव्ड हियर 3 months, मतलब तुम यहाँ पे 3 महीने से भी नहीं रह रहे हो. बट आई नो वॉट देयर इज़ टू नो एंड यू आर नॉट टू गो बैक देयर, मतलब तुम यहाँ से बाहर अब नहीं जाओगे दोबारा उस जगह. डैडी सेज, व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ, आपको किस बात से डर लगता है. व्हाट डू यू थिंक ही इज़, आपको क्या लगता है वो कौन है, ही कौन है यहाँ पे. ही आपके मिस्टर लैम्ब हैं, ठीक है. एन ओल्ड मैन विद अ टिन लेग, फिर डैडी उनको बताता है कि वो एक बूढ़े आदमी हैं, एक टिन लेग है उनका, एंड ही लिव्स इन अ ह्यूज हाउस विदाउट कर्टेन्स एंड हैज़ अ गार्डन, एंड आई वॉन्ट टू बी देयर, और मुझे अच्छा लगता है वहाँ जाना, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ. एंड सिट एंड लिसन टू थिंग्स, और चीज़ों को सुनना, वहाँ बैठना, देखना, राइट, लिसन एंड लुक, एवरीथिंग आई लाइक देयर. मदर सेज, लिसन टू व्हाट, क्या सुनना पसंद है तुम्हें, मतलब वहाँ क्या सुनने को मिलता है. डैडी सेज, बीज सिंगिंग, हिम टॉकिंग. तो डैडी कहता है कि बीज सिंगिंग, क्या बात कही थी मिस्टर लैम ने. बीज, mostly people says that bees buzz, but I have heard them for a long while and I have got to know that they hum. Hum means sing. Bees sing. यहाँ पे डैडी वही बात कहता है. And he says him talking. So these are the 2 things he liked to listen. Mother says, and what's he got to say to you? और वो क्या कहते हैं तुमसे, क्या बात करते हो तुमसे. डैडी कहता है, things that matter. वो चीज़ें जो मैटर करती हैं. थिंग्स nobody else has ever said, वो बातें जो आज तक मुझे कभी किसी ने नहीं कही हैं. थिंग्स आई वॉन्ट टू थिंक अबाउट, सी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, थिंग्स आई वॉन्ट टू थिंक अबाउट, वो चीज़ें जो मैं सोचना चाहता हूँ, जिनके बारे में कोई मुझसे बात नहीं करता. वाई, बिकॉज पीपल ट्रीट हिम एज अ वेरी डिफरेंट पर्सन. They don't treat him as a normal boy and they don't behave and talk also with him in a normal manner, right? So a teenage boy has got some insight from an old man and that's why he is liking
the wisdom of Mr. Lamb. Mother says, then you stay here and do your thinking. मदर कहती हैं अच्छा तो तुम्हें सोचना पसंद है, ठीक है, तो तुम यहाँ रुको घर में और सोचो जितना सोचना है. यू आर बेस्ट ऑफ हियर. तुम यहीं रुको और यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा. फर्दर द स्टोरी गोज ऑन. डैडी सेज, आई हेट इट देयर. मुझे यहाँ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है. मदर सेज, यू कांट हेल्प द थिंग्स यू से, आई फॉरगिव यू. इसकी मदर क्या कहती हैं, मुझे पता है कि यू आर गोइंग थ्रू अ बैड फेज एंड यू आर बाउंड टू मेक you are bound to feel bad and say bad things. That's why I don't mind them. I even don't blame you. Here it goes, right? And I forgive you. तो मदर कहती हैं कि हाँ मुझे पता है तुम एक बैड फेज से गुजर रहे हो. फेज, PHASE, बैड फेज, alright? Due to a bad face, burnt face, alright? Here. So mother says, I excuse you, I forgive you because I know you must be feeling very bad inside and that's why you are just venting your heart out, you are pouring your heart out in that bad manner. So I don't mind it. Daddy says, it's got nothing to do with my face. Very important line here. It says, it has got nothing to do with my face. इसका मेरे चेहरे से कोई लेना देना नहीं है. मीन्स डैडी ने जो ये लाइन कही थी, आई हेट इट देयर, वो कहता है इसका जो आप कह रही हैं कि मैं बाउंड हूँ, इट्स बाउंड टू मेक यू फील, इट्स रेफ़र किया है बर्न्ड फेस, ऑलराइट. इसका उससे कोई लेना देना नहीं है. एंड व्हाट आई लुक लाइक, मैं कैसा दिखता हूँ, मेरा चेहरा कैसा है, इस बात से इसका कोई लेना देना नहीं है कि मुझे ये जगह नहीं पसंद. आई हेट इट देयर. व्हेन आई से इट आई मीन इट एंड इट हैज़ नथिंग टू डू विद माई फेस एंड व्हाट आई लुक लाइक. आई डोंट केयर अबाउट दैट. मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. एंड इट इज़ंट इम्पॉर्टेंट. याद आया आपको, मिस्टर लैम्ब भी हर बात पे इट डजंट सिग्निफाई, इट डजंट मैटर बोलते रहते थे. यू रिमेंबर? हियर डैडी इज़ ऑल्सो सेइंग द सेम. इट्स what I think and feel and what I want to see and find out and hear. ये वो है जो मैं सोचना चाहता हूँ, मैं फील करना और देखना और सुनना चाहता हूँ, ढूंढना चाहता हूँ. इट्स ऑल अबाउट मी, व्हाट आई वांट टू डू. एंड आई एम गोइंग बैक देयर, और मैं वापस वहाँ जा रहा हूँ. ओनली टू हेल्प हिम विद द क्रैब एप्पल्स, और मैं उन्हें क्रैब एप्पल्स को पुल डाउन करने में आई हेल्प हिम. ओनली टू लुक एट थिंग्स एंड लिसन, सिर्फ वहाँ चीज़ें देखने और सुनने के लिए. बट आई एम गोइंग, सिर्फ और सिर्फ मतलब उनको हेल्प करने के लिए, चीज़ें देखने और सुनने के लिए. लेकिन मैं जा रहा हूँ, मैं जाऊँगा. बट आई एम गोइंग. मदर सेड, यू विल स्टॉप हियर, तुम यहीं रुकोगे. डैडी सेड, ओ नो, because if I don't go back there, I'll never go anywhere in this world again. So here he is showing his willpower and determination. And he slams the door. Daddy runs and then panting. Panting means breathing very heavily, right? So here he was, in a very difficult manner he was breathing. So he just reached, and I want the world, I want it. And his panting sound fades. Here he has got all the confidence in him. So this is a very smiling phase of his life, all right? So here Daddy got his confidence back. Then comes to scene 3. अब third scene कहाँ का है? Again Mr. Lamb's garden. गार्डन साउंड आ रही है वहाँ पे अगेन. द नॉइज़ ऑफ अ ब्रांच शिफ्टिंग. लेकिन इस बार गार्डन में कौन सी साउंड आ रही है? बीज की साउंड नहीं है, लीव्स वेव की साउंड नहीं है. कैसी साउंड है? एक ब्रांच शिफ्ट हो रहा है. इट मीन्स अ ब्रांच इज़ ब्रेकिंग और अबाउट टू ब्रेक. एप्पल्स थम्पिंग डाउन, मतलब ब्रांच शिफ्ट हो रही है, शिफ्टिंग की आवाज़ आ रही है. एप्पल्स नीचे गिरने की आवाज़ आ रही है. एंड द ब्रांच शिफ्टिंग अगेन. तो हो सकता है मिस्टर लैम्ब जो हैं वो एक ब्रांचेस को साइड बाय साइड वो हटा रहे हों ताकि वो एप्पल्स को, द राइप वंस, वो तोड़ सकें. मिस्टर लैम्ब सेज, स्टीडी, दैट्स गॉट इट, दैट्स इट, मोर एप्पल्स फॉल देन, एंड अगेन दैट्स इट. एंड तो मिस्टर लैम्ब क्या कर रहे हैं, वो अपने से ही बातें कर रहे हैं. वो कह रहे हैं धीरे से, हाँ
हाँ मिल गया एप्पल, ये रहा, हाँ फिर से ये रहा। तो ऐसे ऐसे करके वो खुद ही में बात कर रहे हैं एंड ही इज़ पुलिंग डाउन द क्रैब एप्पल्स टू द ग्राउंड. And then what happened? Very important here. A creak, a crash, the ladder falls back. Mr. Lamb with it. Mr. Lamb उस लैडर पे हैं जो लैडर गिर गया है. A thump, एक ज़ोर की धम की आवाज़. The branch swishes back. ब्रांच जो है वापस स्विश करती है जहाँ से उसको पकड़ा होगा, खींचा होगा. Creaks, टूटने की आवाज़. And then silence. और फिर साइलेंस हो जाता है. Derry opens the garden gate, still panting. और डेरी एकदम हवा में उड़ते हुए खुश that I want the world, I want it, I want it. He is just coming here in the garden. और वो गार्डन का गेट खोलता है और अभी भी हाफ रहा होता है. डेरी कहता है you see, I came back. और डेरी बहुत खुशी से कहता है देखा आपने मैं वापस आ गया. You said I wouldn't. आपने कहा था मैं नहीं आ पाऊँगा. And they said, वो भी कहते थे मैं नहीं आ पाऊँगा. But I came back. लेकिन मैं आ गया. I wanted. And then he stopped suddenly. Here is the sign. He stops dead and silence. उसकी चुप्पी एकदम एक डेड इंसान जैसी हो जाती है, एकदम शांत हो जाता है. He says, Mr. Lamb, Mister, you have... He runs through the grass, stops and kneels. Means he has seen Mr. Lamb falling on the ground, lying on the ground. He says, Mr. Lamb, it's all right, you fell, I'm here. Mr. Lamb, it's all right, I'm here, right? So he keeps on saying that Mr. Lamb, मैं यही हूँ, आप ठीक हैं और आप गिर गए हैं, मैं यही हूँ. Mr. Lamb, look at me, right? And I came back, Lammy Lamb. फिर वो उन्हें कहते हैं मैं वापस आ गया. Mr. Lammy Lamb, मैं वापस आ गया. I did come back. मैं वापस आ गया. And then Derry begins to weep. A sad ending to the story. फिर डेरी रोने लगता है बहुत बुरी तरह. It means Mr. Lamb is dead and Derry is again alone. But one thing he has gained meeting with Mr. Lamb. Mr. Lamb से मिलने पर उसे एक चीज़ का एहसास हुआ है. उसे एक ऐसी चीज़ मिली है जो शायद अब वो ज़िंदगी में कभी नहीं खोएगा. उसने खुद को खो दिया था. But meeting with Mr. Lamb, he has gained himself. He has got himself back. डेरी ने खुद को वापस पा लिया, अपना कॉन्फिडेंस वापस पा लिया. दुनिया जीतने का कॉन्फिडेंस, दुनिया में रहने का कॉन्फिडेंस. तो मिस्टर लैम्ब तो अल्टीमेटली ही इज़ एन इमॉर्टल बीइंग, राइट, meant to decay. So he is no more in this world. But डेरी को जो टीचिंग्स वो दे के गए हैं, what डेरी has learned from Mr. Lamb is valuable, is priceless. Hope you all have liked this story and must have gained some insight from this story. Thank you children for watching and hope you all have liked the story, understood it properly. So take care, keep learning, keep growing.